Hello, Namaste, welcome back to our channel. So today's topic is advertisement, another video on short writing, as you have seen earlier video which was on notice. So today's topic for our writing skill is advertisement for 3 marks. So if you don't want to do notice, there is option of advertisement. So what is advertisement, what are its marks, and how we can do advertisement for short writing. So in short writing series next we will do advertisement. So let's see what is advertisement. So advertisement means to say a promotion of product or what quality. You have seen there is two types. There are two types of advertisement. First classified, second display, commercial. So classified, we will mostly focus on classified type which we have to do in our exam for class 10th. So what is classified advertisement? So you need to say you come across classified advertisement in the columns of newspaper. So for newspaper columns you will see the classified advertisement and magazines. It categorized in separate columns. So you have to write advertisement in columns of newspaper. Let's see. It occupies less space. So less space and less words. And is more economical. Means you have to sell for some economical purposes. So that are the kind of classified advertisement. I hope you got clear about advertisement. It is promotion of product or any kind of thing. You can see it will come in classified column of newspaper. So marks, what are its marking scheme? So for 3 marks as per CBSE for class 12. For class 12 it is for 3 marks. 1 marks for format, 1 marks for content and body you write in the advertisement. Then 1 marks for expression and grammatical mistakes. So these are the types classified display and it is the thing we have to do for newspaper advertisement. So let's see. So types of advertisement comes in exam. So these are the main or focus types for advertisement for sale. If there is property, product, appliances, property. So for sale, you have to write advertisement for sale, for rent, to let, sale. यदि आपको कुछ बेचने के लिए प्रोडक्ट को बेचना है और उसके टाइप में आता है एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन, तो 3 मार्क्स के लिए आपको प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट, अप्लायंसेस इन सबके सेल लिखना पड़ेगा. सेकंड हमारा आता है 12th क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉस्ट एंड फाउंड. कुछ आपको पाया, कुछ आपने खोया, कुछ भी, कोई प्रोडक्ट, कोई पर्स, कोई बैग. देन सिचुएशन वैकेंट एंड सिचुएशन वांटेड. सो इसका क्या मतलब होता है? ये जॉब के लिए, बेसिकली ये जॉब के लिए होता है. यदि आप कोई स्कूल में जॉब, टीचर की जॉब खाली है, उसके लिए सिचुएशन वैकेंट. सिचुएशन वांटेड होता है जब हमें जॉब चाहिए होता है. हमने एमबीबीएस कर रखा है, मुझे जॉब चाहिए. हमने बीएड कर रखा है, मुझे टीचर की जॉब चाहिए. सो इसके लिए हम सिचुएशन वांटेड लिखते हैं. और सिचुएशन वैकेंट का यूज होता है जब किसी कंपनी, किसी स्कूल, किसी संस्था को जॉब देनी होती है. सो सिचुएशन वैकेंट हो जाएगा. सो एंड देयर आर मेनी टाइप्स बट मैट्रिमोनियल एज वेल. मैट्रिमोनियल मतलब होता है ब्राइड वांटेड, ग्रूम वांटेड. इसमें शादी के रिगार्डिंग एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं कि इस फैमिली में ऐसे टाइप के चाहिए. सो इन दिस वी विल सी that all types of cover sales and lost and found, situation vacant, situation wanted, matrimonial. Let's understand by example. So yes, what is the format of advertisement? How we can write advertisement? तो सबसे पहले advertisement का format देखेंगे and इसका example देखेंगे. So title, you have to choose a title, select a title as there are many types. So in question you will get understand what is kind of title. So let's see title. It should be suitable according to question. Title एक अच्छा सा टाइटल दे देंगे एडवर्टाइजमेंट का. अगर सेल किया तो होलसेल, रेंट, टू लेट, प्रॉपर्टी, देन सेल, परचेज, सेल, दैट कैन बी द टाइटल्स. एंड फॉर सिचुएशन वैकेंट means there is job, so you will give the title situation vacant. If you want job, so title will be situation wanted. If something is lost, then title will be situation, title will be lost. Then if there is found, so if you found something, then title will be found. So let's see then content. उसमें आपको डिटेल्स वगैरह लिखनी होगी. कंटेंट के अंदर नीड्स क्या जरूरत है, नीड कुछ आपको सामान चाहिए, कुछ पर्सन चाहिए. देन कॉन्टैक्ट डिटेल्स. सो एडवर्टाइजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कॉन्टैक्ट डिटेल्स कि आपको कॉन्टैक्ट देना है, किसके पास हमें कॉन्टैक्ट करना है इस चीज़ को लेने के लिए या फिर किसी चीज़ की जॉब के लिए. तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स देना मैंडेटरी है. देन मेक अ बॉक्स. सो एक बॉक्स में ही होता है एडवर्टाइजमेंट भी, शॉर्ट फ्रेज में होता है, वर्ड्स में होता है. Then let's see the question or example which have come in 12th mock test.
So let's see. You want to sell. आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा, उसी में से हमें सारा एडवर्टाइजमेंट लिखना है. So let's start. You want to sell your car and you are going abroad. आपको अपनी कार बेचनी है क्योंकि आप जा रहे हो, because you are going abroad. Draft a suitable advertisement in not more than 50 words giving necessary details of your car. आपको एक एडवर्टाइजमेंट लिखना है, ड्राफ्ट करना है 50 शब्दों से कम में, और अपने सारी नेसेसरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और इंपॉर्टेंट डिटेल्स देनी है. सो आंसर देखेंगे क्लास 12 का सीबीएसई बोर्ड का फोर सेल के लिए. आपको एक कार बेचनी थी, मिनिमम वर्ड्स में ज्यादा चीजें बता करके हम अपनी कार को सेल करेंगे एज यू आर गोइंग अब्रॉड. सो लेट्स सी फोर सेल. टाइटल विल बी फोर सेल बिकॉज यू हैव टू सेल. आपको कुछ बेचना है. सो Hyundai कार ऑन सेल, लेटेस्ट मॉडल विथ एडवांस फीचर एज एयरबैग्स. आपको सारी नेसेसरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देनी है. लेस फ्यूल कंज्यूमिंग, उसकी सारी खासियत और उसके सारे डिटेल्स. ऑल सेफ्टी मेजर्स विद इंश्योरेंस ऑफ व्हाट 5 लाख. प्राइस इज, आपको प्राइस के बारे में जरूर बताना है. एक्सपेक्टेड या प्राइस नेगोशिएबल. नेगोशिएबल का मीनिंग होता है कि प्राइस को कम ज्यादा कर सकते हैं. वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द प्राइस. सो प्राइस नेगोशिएबल, प्राइस इज नेगोशिएबल एंड रीजनेबल. आप किसी रीजन के अकॉर्डिंग प्राइस मांग रहे हैं. सो देन यू हैव टू राइट नेम. नेम में एज पर क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन में नेम बता देंगे एडवर्टाइजमेंट के. देन यू हैव टू गिव कॉन्टैक्ट डिटेल्स. सो लेट्स सी next thing which we have to keep in our mind. So let's see what are the do's and don'ts of advertisement. So let's see what are the do's and don'ts of advertisement. जो आपको चीजें ध्यान रखनी है एडवर्टाइजमेंट लिखते समय, और क्या आपको गलतियां नहीं करनी, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट 3 मार्क्स का है, तो उसके लिए भी हमें कुछ पॉइंट्स ध्यान रख के लिखना होगा. सो डूज. सो राइट इन शॉर्ट वर्ड्स. काफी कम शब्दों में लिखे और फ्रेजेस में लिखे, ज्यादा बड़े बड़े सेंटेंसेस ना बनाए. सो बिवेयर ऑफ सिचुएशन. ज्यादातर बच्चे क्या गलती करते हैं, सिचुएशन में उन्हें दिया होता है कि आपको जॉब देना है, बट वो जॉब लेने का सिचुएशन वांटेड कर देते हैं, या फिर उनको बोल रखा होता है अथॉरिटी, आप एज यू आर प्रिंसिपल यू हैव टू एम्प्लॉय, मींस देयर इज सिचुएशन वैकेंट. आप प्रिंसिपल हो, आपको जॉब देना है, तो सिचुएशन का ध्यान रखें. सिचुएशन वांटेड है या वैकेंट है. सो कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आप गलती से किसी और को कॉन्टैक्ट दे देते हैं, या फिर आपको जो नाम दे दिया आपने वो दे दिया कॉन्टैक्ट में. तो कॉन्टैक्ट का ध्यान रखें कि आप किसको, जैसे लॉस्ट किसी का कुछ खो गया तो वो कहीं और भी सबमिट करवा सकता है, तो वहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल्स देना होता है. एक क्वेश्चन था जिसमें चेन्नई एक्सप्रेस के ट्रेन के स्टेशन पे उसने सबमिट करा था, तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स में हमें वो देना था, अपना नाम नहीं देना था, तो उसमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स का ध्यान रखें. एंड बॉक्स जरूर बनाए, क्योंकि बॉक्स बनाना भूल जाते हैं लोग. नोटिस में तो ध्यान रखते हैं बट एडवर्टाइजमेंट में बॉक्स नहीं बनाते, सो बॉक्स जरूर बनाए. सो डोंट्स में आपको क्या नहीं करना. सो आपको वर्ड लिमिट जो कि 50 वर्ड्स है उससे एक्सीड नहीं करना, ज्यादा नहीं लिखना. प्रमोशन टाइप देना, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए. टाइम अकॉर्डिंग टू 3 मार्क्स, क्योंकि इसमें ज्यादा आपको लिखना नहीं है, तो ज्यादा इसमें समय ना दे, टाइम ना दे, और डोंट एक्सीड वर्ड लिमिट. सो प्रेजेंटेशन एक अच्छी होनी चाहिए. लाइक आप इसमें सेंटेंस ना लिखें, उस प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा अच्छे से बता पाए, या फिर किसी भी चीज़ का आपका कुछ खो गया, कुछ पा लिया, या जिस जॉब है उसकी डिस्क्रिप्शन ठीक से दे पाए. तो प्रेजेंटेशन एक अच्छी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन खराब नहीं होनी चाहिए. So these were the things to keep in mind while writing an advertisement. So let's see what we can do. In next video we will come up with the short writing skill as well, invitation and replies. Thank you so much for watching this.